Hello viewers, welcome to YouTube channel Phase Quantum Classes. In this video, we will discuss deduction of Einstein's mass energy relation, its physical significance, and followed by experimental evidence in support of mass energy relation. It is lecture 8 of BSc Part 1 Physics of the book Relativity. First of all, deduction of Einstein's mass energy relation, which is a famous relation given by Einstein in a special theory of relativity. Let dx be the displacement of a body of mass m. Suppose mass of the body is a small m. Let dx be the displacement of a body of mass small m by the external force, by an external force F and external force F vector, then work done stored in the body, in form of kinetic energy is given by then work done stored in the body in form of kinetic energy, that is abbreviated as k dot e dot, is dt equals to, we can write dt is equal to, which is work done stored in the body in form of kinetic energy, dt is equal to force, a scalar product of force and displacement, because work done is a scalar product of force and displacement. वर्क डन फोर्स तथा डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है और यह बॉडी में स्टोर्ड होगा अगर किसी पार्टिकल, किसी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके कारण उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट dx होता है, तो उस बॉडी में वर्क डन स्टोर्ड होगा जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वह dt इजकल टू वर्क डन dw इजकल टू dt इजकल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. We can write this as equation 1. Now using Newton's second law of motion, which is force is equal to rate of change of momentum. Using Newton's second law of motion, we have न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उपयोग करेंगे. तो फोर्स F इजकल टू dp अपॉन dt. dp is change in momentum divided by dt, that is rate of change of momentum, dp upon dt, and p is equal to, p is linear momentum of the body, which is product of mass and velocity of the body, d by dt, p is equal to mv, where p is the linear momentum, a small p is the linear momentum, which is the product of mass multiplied by velocity of the body. Or here both mass and velocity are variable, so we have differentiating product of m into v with respect to time. We have f is equal to, पहले मास को कांस्टेंट रखेंगे m और उसके बाद वेलोसिटी को वेरी करेंगे, चेंज वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, m इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस, अब वेलोसिटी को कांस्टेंट रख करके मास को का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के एस्पेक्ट में, दैट इज m डी वी अपॉन डी टी प्लस, अभी सेकेंड टर्म v को कांस्टेंट रख करके m का डिफ्रेंसिएशन करेंगे v डी एम अपॉन डी टी. नाउ वी कैन रिप्लेस दिस फोर्स in equation 1. We can write it as equation 2.
सो यूजिंग टू इन इक्वेशन 1 इसमें पुट करेंगे एफ का जो वैल्यू है, एफ डिफ्रेंसिएशन करने के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करने के बाद एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी और पी इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी और उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब इक्वेशन 2 का एफ का वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 we get dt, that is increase in kinetic energy, F is equal to given by from equation 2 m dv upon dt plus v vector velocity dm upon dt dot अंडर ब्रैकेट एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एफ का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट है, फिर डॉट प्रोडक्ट डी एक्स वेक्टर, ये इट इज डी एस वेक्टर। नाउ वी हैव अब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ब्रेक करेंगे और डी टी इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी एम इंटू डी वी डॉट डी वी बाई डी टी है और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट टर्म में, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस अब सेकेंड टर्म को ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डी एस के साथ, स्केलर प्रोडक्ट है तो वी डी एम भी और डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है इसे, तो डैट इज डी एम इंटू वी इंटू डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। ब्रैकेट हटाने के बाद डैट इज वी हैव now we can write m dv dx by dt is v velocity, rate of change of displacement dx by dt is velocity, m dv dot v plus dm v and dx by dt in second term also velocity, rate of change of displacement v dot v, that is we have m v dot dv plus v dot v, that is v square dm, this is equal to dt, therefore we have dt equals to m v dot dv plus v square dm. This is equation number 3. Now we know from the variation of mass with velocity formula, which was also given by Einstein, variation of mass with velocity. If a body of mass m moving with velocity v, then its mass increases. So now using variation of Einstein's variation of mass with velocity formula, from variation of mass with velocity formula, we have m equals to m naught upon root under 1 minus v square by c square। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिससे यह इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है कि कोई अगर पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास m0 होगा, लेकिन जब वह पार्टिकल या बॉडी v वेलोसिटी के साथ मोशन में आएगा तो उसका मास स्मॉल m इंक्रीज कर जाएगा और रेस्ट मास बॉडी का, उस पार्टिकल का जो रेस्ट मास होगा उसके कंपेरिजन में जब वह बॉडी या पार्टिकल
मोशन में होगा v वेलोसिटी से, तो उसका मास बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये जो फैक्टर है 1/√(1 - v²/c², यह इंडिकेट करता है, इसमें माइनस टर्म है डिनोमिनेटर में, इंडिकेट करता है कि जब पार्टिकल मोशन में होगा, बॉडी मोशन में होगा, तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ Einstein's formula for variation of mass with velocity. It was also given by Einstein. This is equation number 4. Now, squaring both sides, we have squaring this formula, variation of mass with velocity. We have or m square equals to m naught square अपॉन, नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो केवल 1 - v² अपॉन c²। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, m² 1 - v² अपॉन c² इक्वल्स टू m naught square. This is equation number 5, where m0 equals to rest mass of the body. Rest mass, that is mass of the body in rest. जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास m0 है, और जब बॉडी v वेलोसिटी के साथ मोशन या v स्पीड के साथ मोशन में है तो उसका मास स्मॉल m है, जो कि बढ़ करके इंक्रीज करके स्मॉल m हो गया। जबकि वह बॉडी जब रेस्ट में है तो उसका मास m0 है। रेस्ट मास m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। Now from equation 5 we have m² और m², और इसे एलसीएम ले लेंगे, c² ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 1 - v²/c² में, दैट इज एलसीएम c² माइनस v² अंडर ब्रैकेट क्लोज्ड, that is in RHS it is m0 square, और m² c² माइनस m² v² इक्वल्स टू m0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c²। ब्रैकेट हटाने के बाद ब्रैकेट नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया, m0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c², जो डिनोमिनेटर में टर्म है मल्टीप्लाई हो गया RHS में, और ब्रैकेट को हटा दिया गया मल्टीप्लाई करके m² इंटू c² माइनस, अब m² को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो m² v² इक्वल टू RHS इज m0 स्क्वायर इंटू c²। Now on differentiating both sides of equation 6. On differentiation, we have m². Here m is variable but c is constant, and m and in second term both m and v are variables. तो here c² constant है, c² को इसको c² को यहाँ पर उसी फॉर्म में लिख देंगे, c² कांस्टेंट होगा, लेकिन m² वेरिएबल है तो m² का डिफरेंशिएशन 2m और फिर m का dm, चूँकि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए m² का 2m और फिर m का dm। c² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्क्वायर जैसे का तैसे रहा यहाँ। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, m² v² दोनों वेरिएबल है, और दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो पहले हम m² का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो m² का 2m फिर m का dm मल्टीप्लाइड बाई v² कांस्टेंट रहेगा सेकेंड जो टर्म है, और बीच में दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फार्मूला में बीच में प्लस होता है, लेकिन आगे चूँकि माइनस साइन है इसीलिए यहाँ पर भी हम माइनस यहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए कि अगर ब्रैकेट लिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे तो बीच में प्लस का टर्म होगा, लेकिन चूंकि आगे माइनस है इसलिए
बीच का जो प्लस टर्म है वो भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने के बाद। अब एम स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एम स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किए थे तो 2m और फिर m का dm हो गया और मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म v स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अब v स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v स्क्वायर का 2v और फिर v का dv, और ये दोनों कांस्टेंट है। m0 रेस्ट मास है, ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, उसका मास जब रेस्ट में है तो मास m0 है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका कोई चेंज का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। और यहाँ 2m और यहाँ भी 2m टर्म है, दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो 2m फर्स्ट टर्म में है, यहाँ फर्स्ट टर्म में हो जाएगा 2m बाहर किए c स्क्वायर dm, यहाँ भी सेकेंड टर्म में 2m बाहर किए dm इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ भी 2m हम बाहर किए हैं तो एक m बच जाएगा इसमें, mv dv ब्रैकेट के अंदर mv dv इक्वल टू 0, और देयरफॉर c स्क्वायर dm माइनस dm इंटू वी स्क्वायर माइनस mv dv इक्वल्स टू 0, और c स्क्वायर dm इक्वल्स टू v स्क्वायर dm, इन दोनों टर्म को RHS में ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dm प्लस mv dv, और इक्वेशन 3 के हेल्प से v स्क्वायर dm प्लस mv dv इक्वल टू dt, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट इट एज c स्क्वायर इंटू dm इक्वल्स टू v स्क्वायर dm प्लस mv dv इक्वल टू dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हमने ऑब्टेन किया था v स्क्वायर dm प्लस mv dv इक्वल्स टू increase in kinetic energy of the body, which is stored as work done in the body for displacement x of the body by the external force F। यहाँ लिखे हम यूजिंग इक्वेशन 3, जिसमें हमने ऑब्टेन किया था v स्क्वायर dm प्लस mv dv इक्वल्स टू dt। अब सपोज करते हैं कि शुरू में इनिशियली ऑब्जेक्ट और बॉडी का मास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास m0 है, और जब फोर्स अप्लाई हुआ उस बॉडी पर, F फोर्स अप्लाई हुआ, उसके बाद और उसका जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास रेस्ट में m0 है, और जब बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन में आ गया, जब उसका वेलोसिटी v हो गया, तब उस ऑब्जेक्ट का मास रेस्ट मास m0 से इंक्रीज होकर के स्लाइटली इंक्रीज हो गया m0 प्लस dm, दैट इज m, स्मॉल m। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज टू न्यू वैल्यू which can be supposed as a small m. So we can integrate equation 7 to obtain total increase in kinetic energy, which is stored as work done in the body. So integrating both sides with limit of mass m0 to m. So integrating both sides of equation 7, we have integral dt, और इंटीग्रेशन करने का पर्पस है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना। तो dt इंटीग्रल dt इक्वल टू c स्क्वायर इज कांस्टेंट, और dm का इंटीग्रेशन हम करेंगे, लेकिन मास का जो लिमिट है, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास m0 रेस्ट मास, और बाद में v वेलोसिटी से जब मोशन कर रहा है बॉडी तो उसका मास बढ़ करके m0 प्लस dm, दैट इज अ स्मॉल m, विच इज c स्क्वायर, और dm का इंटीग्रेशन इंटीग्रल dm इक्वल टू m, दैट इज, अब लिमिट सेट कर देंगे इसमें, एक बार m की जगह m करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज m माइनस m0
डी एम का इंटीग्रेशन एम हो गया, उसके बाद लिमिट सेट करेंगे, लोअर लिमिट एम जीरो, अपर लिमिट एम, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एम माइनस एम नॉट. In LHS we have integral of dt is equal to total kinetic energy capital T. So we can write LHS as T, capital T, that is increase in kinetic energy of the body. So LHS of this equation, integral dt is equal to t और कैपिटल T इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू एम. इसको ब्रैकेट को सी स्क्वायर को दोनों टर्म से ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर इंटू एम दैट इज एम सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एम जीरो दैट इज एम नॉट, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर, दैट इज एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, और एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. टी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और एम जीरो सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी. इट इज एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ रेस्ट मास एम जीरो, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर. सो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी को इन एब्रिविएटेड फॉर्म के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस एनर्जी ड्यू टू रेस्ट मास एम नॉट प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द बॉडी. जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका, जब पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास एम नॉट होगा, तो एम नॉट इंटू सी स्क्वायर दैट इज एनर्जी, बिकॉज वी हैव टू प्रूव ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. मास में मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड का स्क्वायर से तो क्या होगा, एनर्जी होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन विच वी हैव टू डिड्यूस. तो रेस्ट मास एनर्जी हो गया एम नॉट जीरो सी स्क्वायर, और इसको टोटल, दैट इज टोटल एनर्जी, एम सी स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी, तो विच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज वी कैन राइट इट एज कैपिटल ई, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, sum of both energies will equal to, we can say it total energy. Therefore mc square is equal to total energy, कैपिटल ई हो गया, total energy of the body, total energy of the body, total energy of the body. Therefore E equals to mc square, and this is famous Einstein's mass energy relation. And now we are able to deduce this famous Einstein's mass energy relation, that is E is equal to mass mc square. This is Einstein's mass energy relation जो हमें ऑब्टेन करना था, डिड्यूस करना था. Einstein's mass energy relation, mass energy relation. After deduction of this formula, we have to discuss important physical significance or importance of mass energy relation, जिसे कभी कभी डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन पेपर्स में टेल के रूप में पूछा जाता है. मेन पार्ट तो इसका डिडक्शन ऑफ आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन है, जो कि हमने ऑब्टेन किया, डिड्यूस किया, E is equal to mc square. Now physical significance of mass energy relation, physical significance of mass energy relation, that is E is equal to mc square का physical significance. और physical significance का मतलब फिजिकल इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि ये इस मास एनर्जी रिलेशन से फर्स्ट इसका एडवांटेज या फर्स्ट सिग्निफिकेंस यह है कि ये कंप्लीट इक्विवेलेंस है. मास ऑफ दिस रिलेशन गिव्स
कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो मास का में कमी हो रही है वो टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिलेशन दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर मास एनर्जी रिलेशन गिव्स कंप्लीट इक्विवेलेंस, ये समतुल्यता है मास तथा एनर्जी में पूर्णतः। कंप्लीट इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। एंड सेकेंड significance of physical significance of mass energy relation is, from this relation it is clear that this relation informs that this relation, that is mass energy relation, this relation informs that mass is another form of energy, that is mass is converted into energy and energy into mass by the given relation E is equal to mc square given by Einstein. So this relation informs that mass is converted into energy and vice versa, that is energy into mass. So this relation informs that mass is converted into energy and energy वाइस वर्सा, दैट इज एनर्जी इनटू मास। इसे वाइस वर्सा भी लिखा जा सकता है कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। तो दीज आर टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। Now in last, evidence in support of mass energy relation E is equal to mc square। मास एनर्जी रिलेशन के सपोर्ट में कुछ प्रायोगिक प्रमाण जो यह सही ठहराए कि मास एनर्जी रिलेशन सही है। और इसे भी कभी कभी बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टेल के रूप में डिडक्शन ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो मेन पार्ट क्वेश्चन का होता है, उसके टेल के रूप में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसे भी तैयार करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन इज फेनोमेनन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इन न्यूक्लियर फिजन में एक हेवी न्यूक्लियस सपोज किया जाए, यूरेनियम, रिलेटिवली स्मॉल फ्रैगमेंट्स, रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स में स्प्लिट कर जाता है एक हेवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम है न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में, और काफ़ी अधिक अमाउंट में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो यह एनर्जी रिलीज इतना अत्यधिक अमाउंट में, इतना एक्सट्रीमली ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी जो रिलीज होता है न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में, वह इस मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर इसके अकॉर्डेंस में है। क्योंकि जब न्यूक्लियर फिजन के केस में प्रोसेस में जब कोई हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम, उसको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के द्वारा स्ट्राइक करा करके रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाइड में या फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन किया जाता है, तो जो फ्रैगमेंट्स हैं उसका जो रेस्ट मास होता है वह ओरिजिनल न्यूक्लियस के रेस्ट मास से कम पाया जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो मास है, ओरिजिनल न्यूक्लियस है, और जो फ्रैगमेंट्स हैं आफ्टर न्यूक्लियर फिजन, जो पार्ट्स हैं उस न्यूक्लियस के, ओरिजिनल न्यूक्लियस के, तो जो फ्रैगमेंट्स हैं
न्यूक्लियर फिजन के पास ऑब्टेन होते थे प्रोसेस में ऑब्टेन होता है, तो फ्रैगमेंट्स का जो कुल मास है वह ओरिजिनल जो न्यूक्लियस है उसके मास से कम पाया जाता है। तो यहाँ पर मास डिफरेंस हो गया, ओरिजिनल न्यूक्लियस और फ्रैगमेंट्स के मास के बीच का जो डिफरेंस है वह मास डिफेक्ट के रूप में अपीयर होता है। और यह मास डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के रूप में, यह मास डिफेक्ट डेल्टा एम सी स्क्वायर के रूप में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वह बहुत बड़ा, ये प्रोसेस बहुत बड़ा एविडेंस है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो राइट डाउन इन न्यूक्लियर फिजन the rest mass, total rest mass, total mass of the fragments means a smaller nuclide, the total mass of the fragments is found to be a small in comparison to the mass of the original nucleus. Suppose यूरेनियम, चूँकि यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करा करके, इज फाउंड टू बी अ स्मॉल इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस, मास ऑफ द original nucleus, and this mass difference, that is mass defect, that is mass of the original atom, original nucleus minus total mass of the fragments, this mass difference is called mass defect. There is a mass defect, so there is a mass defect delta m, which is converted into energy according to this mass defect delta m is converted into energy according to mass energy relation, which is converted into energy as delta m into c square is equal to capital E, which is energy released. तो यही कारण है कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार ही इज इक्वल टू डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट अपीयर होता है न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में, तो वह मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन होता है। इसलिए न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो कि मास एनर्जी रिलेशन के का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डेंस में ही है। मतलब मास एनर्जी रिलेशन के एविडेंस में के सपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है, सपोर्ट है, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ मास एनर्जी रिलेशन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज। नाउ इट्स रिवर्स प्रोसेस इन न्यूक्लियर फ्यूजन। In nuclear fusion, two smaller nuclides, suppose hydrogen, are fused to form relatively a bigger nucleus, suppose helium. In this process, too, large amount of energy is released. न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में भी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में भी, जब छोटे छोटे न्यूक्लियाइड मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के दो छोटे न्यूक्लियाइड मिल करके हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस में भी काफ़ी अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यह भी मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है उसका जो टोटल मास है वह जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा
उसके मास से ज़्यादा ही होता है। मतलब जो फ्यूज करने के बाद स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स के फ्यूज करने के बाद, स्मॉलर न्यूक्लियाई के फ्यूज करने के बाद जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस होता है, तो रिजल्टेंट न्यूक्लियस का मास जो टोटल मास है फ्यूजिंग न्यूक्लियाइड का, उससे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर भी देयर इज मास डिफरेंस विच इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, and this mass effect is converted into energy by the relation delta m into c square. That is, if delta m mass defect is multiplied by the speed of light square, then we obtain energy. तो न्यूक्लियर फ्यूजन का भी प्रोसेस मास एनर्जी रिलेशन के सपोर्ट में एक प्रमाण है, एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि मास एनर्जी रिलेशन सही है। तो इन न्यूक्लियर फ्यूजिंग nuclei, that is a small nuclei to a small nuclei, fusing nuclei are combined to form a big nucleus. In this process, mass of the resultant nucleus, that is big nucleus, resultant nucleus is found to be small in comparison to the fusing nuclei, that is a smaller nuclei which are combined to form the resultant big nucleus. A small in comparison to the fusing nuclei. जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं उसको फ्यूजिंग न्यूक्लियाई कहा जाएगा, जो कंबाइंड होकर के आपस में कंबाइंड होकर के बिग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में भी देयर इज मास डिफरेंस, जो कि जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस है उसका मास फ्यूजिंग न्यूक्लियाई के मास से कम पाया जाता है। दिस मास डिफरेंस, जो मास डिफेक्ट होगा, दिस मास डिफरेंस appear as mass defect. This mass difference, that is mass defect delta m is converted into energy by the given relation, delta m into c square is equal to E, which is Einstein mass energy relation, is converted into energy by delta m into c square, that is E, that is mass energy relation. Mass defect multiplied by a square of a speed of light c square, then we obtain energy which is released in case of nuclear fusion. So both processes, nuclear fission and nuclear fission, are evidences in support of mass energy relation. और इसी के साथ ये लेक्चर 8 BSc पार्ट 1 फिजिक्स का, जो कि फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेज के लिए है, समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यह चैनल आपको घर बैठे कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराएगा। लॉकडाउन पीरियड में भी, जब क्लासेस बंद हैं, उसमें भी, उस सिचुएशन में भी यह चैनल आपको घर बैठे नियमित रूप से वीडियोज प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू वेरी मच।